मतलब इस तरह से एग्जाम्पल, दिस un is equal to 0 to pi by 4 0 to pi by 4 tan and x dx। हमें निकालना है u5 प्लस u3 किसके इक्वल आएगा, u5 प्लस u3 किसके इक्वल आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं un is equal to 0 to pi by 4 tan, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा n minus 2x into tan square x dx। Now when bases are same, powers are added, this tan n minus 2 वहां पे tan square x आएगा, tan n minus 2 plus 2 that is again tan n x। समझ आ रहा है आपको। so this is equal to 0 to pi by 4 tan n minus 2 x, tan square theta is sec square theta minus 1 that is sec square x minus 1 और यहाँ पे dx। so this is equal to 0 to pi by 4 tan n minus 2x sec square x dx माइनस दूसरा इंटीग्रल आएगा आपको 0 to pi by 4, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो tan क्या आएगा n minus 2x dx। तो यहाँ पे आपने पहले tan n minus 2 इसको मल्टीप्लाई किया sec square फिर tan n minus 2 आपने -1 को मल्टीप्लाई किया तो दो इंटीग्रल बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे u है, दिस un is equal अब un 0 to pi by 4 tan n minus 2 x sec square x dx माइनस, अब देखो un आपका क्या है, un 0 to pi by 4 tan n minus tan n x dx। now when n is replaced by n minus 2, un की जगह मैं लूंगा n minus 2 वो आएगा 0 to pi by 4, यहाँ पे भी tan n की जगह क्या आएगा n minus 2x dx। so this tan n minus 2 this integral 0 to pi by 4 tan n minus 2x dx is basically un minus 2, तो इसकी जगह un minus 2 है, correct। this further implies un, now this minus un minus 2 है ना, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, आएगा प्लस un minus 2 is equal to यहाँ पे है आपको 0 to pi by 4 tan शाबाश n minus 2x sec square x dx। यहाँ पे मैं पुट करूंगा पुट tan x is equal to t, tan x is equal to t, this implies tan x is equal to sec square x dx is equal to dt is equal to dt। तो ये आएगा आपको, लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, वो मैं यहीं पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू व्हेन x is 0 t is tan 0 is again 0 tan 0 again 0, ठीक है 0। now upper limit when x is pi by 4 tan of pi by 4 किसके इक्वल है 1, तो दिस इज 1। समझ आ रहा है। now tan x आपने किसको पुट किया है t, इसको पुट किया tan t, तो यहाँ पे क्या आएगा t raised power n minus 2 sec square x dx किसके इक्वल आ रहा है। सो आप इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी t raised power n minus 2 n plus 1 divided by n, वो क्या आएगा t raised power n minus 2 plus 1 t raised power n minus 1 divided by n minus 1 within the limit is 0 to 1 0 to 1। यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ un plus un minus 2 is equal to, अब दे दो लिमिट, पहले मैं इसको t को अपर लिमिट दे दूंगा मैं t को 1, तो 1 raised power n minus 1 is 1 divided by n minus 1। लोअर लिमिट क्या देना है, जब t को 0 दे दूंगा मैं वो आएगा 0। so this implies result is un plus un minus 2 is always equal to 1 divided by n minus 1।
ये हमने रिजल्ट निकाला। समझ आया? अब मुझे क्या निकालना है, u5 प्लस, तो मैं पुट करूंगा पुट। सो आपको जस्ट ये रिजल्ट याद रखना है, पूरा नहीं ये रिजल्ट, मगर ये रिजल्ट आपको याद रखना है। नो आपको पता होना चाहिए u n इसके इक्वल है बस, ठीक है ना। सो पुट n इज इक्वल टू 5, इसको आप फर्स्ट लिख सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे आएगा कर्नल u5 प्लस u5 minus 2 3 is equal to 1 divided by 5 minus 1, that is 1/4. समझ आ रहा है? Go u5 plus u3 is 1/4. इसी तरह से अगर मैं पुट n लगाऊंगा 3 वहां पे, पुट n is equal to 3 in what फर्स्ट में 3 दे दो, तो यहाँ पे क्या आएगा u3 here plus u3, यहाँ पे क्या आएगा u1 is equal to 1 divided by 3 minus 1, that is 1/2. समझ आ रहा है? So u3 plus u1 is equal to 1/2. अगर मुझे अब u1 निकालना हो, u1 now u1 सीधी सी बात है, un आपको पता है n 0 to pi by 4, un क्या है आपको 0 to pi by 4 tan n x, so u1 क्या आएगा 0 to pi by 4 tan is power 1 x dx। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? सो यहां पे आपको इस तरह से आएगा un is equal, इसकी इंटीग्रेशन tan x की log of sec x within the limit is 0 to pi by 4, so that is log of sec pi by 4 minus log of sec 0 lower limit, that is log of sec cos pi by 4 is 1 by under root 2, sec by 4 is root 2 minus log of cos 0 1 है, sec 0 1, log 1 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है log 1 0, so this u1 is equal to log of under root 2। अगर u1 आपको निकलेगा log of under root 2, u3 क्या लिए थे, therefore u3 plus u1 किसके इक्वल है, u3 plus u1 1/2। सो अगर मुझे u3 निकालना होगा वो क्या आएगा 1/2 माइनस u1, वो क्या आएगा 1/2 माइनस u1 क्या है log of root 2। इसी तरह से u5 निकाल सकते हैं। ये मैंने एक इसमें से मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बोले किस तरह से आप कौन सी चीज निकालोगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये वाला इंटीग्रल है 0 to 2 pi sin of 7 1/4x dx, तो इसके लिए हमें जो रिडक्शन फार्मूला वो मैंने पहले ही बोले थे 0 to pi by 2, इसको कन्वर्ट करना है sin nx dx, 0 to pi by 2 cos nx, उनकी कॉमन होते हैं इक्वल टू, वो होता है n minus 1 semi factorial divided by n semi factorial into pi by 2 when n is even, and जब r होगा तो into pi by 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे पुट ये 1/4 पूरा into x ये पूरा आएगा is equal to, ठीक है ना। तो this implies 1/4 dx x with respect to 1 into dx is equal to dt, this implies dx of y का 4 dt। अब मैं सीधा ये इंटीग्रल ही लिख लेता हूं, this is 0 to, so यहाँ पे देखो, सुनो यहाँ पे अब लिमिट चेंज यहाँ पे करना है, लिमिट चेंज करने हैं।
So when x is equal to 0, t is equal to 1 by 4 into 0, that is it. ठीक? But when x is equal to 0, t is equal to 0. lower limit. ठीक? But when x is equal to 2 pi, t आएगा आपको 1 by 4 into 2 pi. 2 1 तो t आएगा 5 by. समझ आ रहा है? So ये आएगा 0 to y by 2. Sin of 7. अब 1 by 4 x किसके इक्वल है? t. और dx किसके इक्वल है? 4d. So 4 निकाल के 0 to 5 by 2 sin 7t dt. Now 7 जो है 7 और है into 5 by 2 नहीं आएगा, ये आएगा n minus 1 semi 7 minus 1 semi factorial, that is 7 semi factorial. वो क्या आएगा आपको 4 into 6 semi factorial, that is 7 semi factorial. इसका आगे खुद कर सकते हैं 4 into 6 semi factorial है आपको 6 into 4 into 2, और वो क्या है 7 into 5 into 3 into 1. तो आप खुद कर सकते हो इसके आगे क्या आ सकता है, ठीक है ना? वो आप कैलकुलेट कर दो, खुद करोगे मल्टीप्लाई करके. अब अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रल sin inverse x divided by 1 minus x square is power 3 by 2 dx. So इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, and because we know that differentiation of sin inverse x is 1 divided by root of 1 minus, so this is integral of sin inverse x divided by 1 minus x square into 1 divided by 1 minus under root of 1 minus x square. Now देखो ये है 1 minus x square raised power 1. This is 1 minus x square raised power 1 by 2. When base of same powers are at, this is 1 plus 1 by 2 y. समझ आ रहा है? तो इसके बाद मैं पुट करूंगा, पुट sin inverse x is equal to t. ठीक है ना? इसकी डिफरेंशिएशन 1 divided by under root of 1 minus x square dx is equal to dt. तो पूरा ये आएगा. अब एक और चीज, when sin inverse x आपने पुट किया है t, अगर आप x निकालोगे, x किसके इक्वल आएगा? x is equal to sin t आएगा ना? तो ये आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ sin इनवर्स x आपने पुट किया है t डिवाइड बाय शाबाश 1 minus x square, x square sin t, तो यहाँ पे sin square t into this 1 minus x square 1 divided by 2 में dx किसके इक्वल? This is integration of t divided by 1 minus sin square theta is cos square. This is cos square t dt. So this is integration of 1 divided by cos square theta is sec square theta. So यहाँ पे आएगा sec square t और यहाँ पे t dt. Correct? Now integrated by parts. Integrated by parts. So t को आप as it is रखो. इंटीग्रेशन को sec square t इंटीग्रेशन ऑफ sec square t. शाबाश, करेक्ट. tan t minus differentiation of t with respect to t is 1 and integration of sec square t is again tan t dt plus c constant of integration. Now this is t into tan t is tan t sin t divided by cos t minus, now integration of tan t. इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है, यहाँ आता है log of sec x या minus log of cos x. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx यहाँ तो होगा minus log of cos x, या इसी माइनस को जब आप ऊपर ले जाते हैं that is log of 1 divided by cos x is sec x. तो यहाँ पे माइनस मैं लूंगा ताकि प्लस में बन जाएगा. मैं लूंगा minus log of tan x, ठीक है ना? यहाँ प्लस log of
tan t, ठीक है ना। सॉरी कॉस्ट, मैं तो मैंने सोच रहा हूं कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो t sin t, sin t किसके इक्वल है यहाँ पे x, x जब पहले में लिख लेना एक और स्टेप, sin t डिवाइड cos t is under root of 1 minus sin square, because cos theta is under root of 1 minus sin square theta, प्लस फिर से log of cos t प्लस c। अब यहां पे देखो, तो दिस इज इक्वल t, अब t क्या है यहाँ पे sin इनवर्स x, तो इस t का वैल्यू है sin इनवर्स x इनटू sin t क्या है x, that under root of 1 minus sin square t, that is x square, ठीक है ना, प्लस log of cos t को फिर से आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ही cos t is under root of 1 minus sin square, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 1 minus sin square क्या है आपको, sin square sin t x 1 minus x square under root of 4 is power 1 by 2, है ना, समझ आ रहा है। तो ये आएगा आपको इस तरह से x ध्यान में under root of 1 minus x square into the sin inverse x plus log m is power n is n log m 1 by 2 log of 1 minus x square plus, अब अगर इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल I m is equal to 0 to 5 by 4 tan m x dx, जिस तरह से इससे पहले हमने ये un से डिनोट किया, हमने लिया था un is equal to 0 to 5 by 4 tan n x dx, तो यहाँ पे मैं un की जगह ये I m से, अगर इस तरह से then you know that आपको पता है, क्या पता है आपको, वहां पे आपको आया था un plus un minus 2 is equal to 1 divided by n minus था आपको, वहां पे आपको un plus un minus 2 आपको निकला था 1 divided by n minus, निकला, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे आएगा un की जगह I m plus I m minus 2 is equal to 1 divided by n minus, अब मैं इसको पुट करूंगा, पुट m is equal to m plus 1, या रिप्लेस m by इस इक्वेशन में, ताकि मुझे एक और रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे मिलेगा I m plus 1, ठीक है ना, प्लस I m की जगह m plus 1 minus 2, ठीक है ना, is equal to 1 divided by I m की जगह m plus 1 minus 1, ठीक, तो आपने यहाँ पे रिप्लेस किया m को by m plus 1, so this implies आपको आ रहा है 1 divided by m plus 1, क्या बात, plus 1 divided by I m, यहाँ पे देखो minus 1 is equal to 1 divided by m, या एक तो ये रिजल्ट है, या m से आप मल्टीप्लाई करो, m into I m plus 1 plus I m minus 1 is equal to 1, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे होगा इस तरह से होगा आपको I tan is equal to 0 to 5 by 4 tan x dx, तो यहाँ पे पहले आएगा इस वाले रिजल्ट के हिसाब से, पहले m की जगह अब यहाँ पे क्या है 10 है, करेक्ट, यहाँ पे आएगा m that is 10 प्लस I m plus 1 यानी I 11, समझ आ रहा है, प्लस I यहाँ पे देखो I m minus 1 I 9 is equal to 1, so you know that I 11 plus I 9 is equal to
1/10। इसी तरह से आप कोई भी रिजल्ट इससे कर सकते हो। अब ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल this I equal to 1/2 to 1/x sin of x minus 1/x dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1/2 to 2, पहले लिखूंगा मैं sin of x minus 1/x, फिर यहाँ पे 1/x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा put this x minus 1/x is equal to t, so you know that इसकी हो जाएगी इस तरह से, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1/x की आ जाएगी माइनस 1/x, तो dx इज इक्वल टू dt। बट यू नो दैट अब यहाँ पे खाली है इस ये 1/x dx, ठीक है ना। तो किसी न किसी तरह से मुझे वही निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/x में कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इससे 1/x से, तो यहाँ पे 1/1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1/x एंड 1/x 1/x क्या, ठीक है ना। अब और एक चीज, अब एक चीज तो मुझे मिल गई 1/x into dx, ठीक है ना। सो 1/x into dx इज इक्वल टू dt, डिवाइड बाय क्या आएगा नीचे, इसको x प्लस 1/x, करेक्ट। सो this is further equal to dt divided by x plus 1/x है ना, यहाँ पे देखो, तो मैंने पुट किया है x minus 1/x, तो x plus 1/x का मुझे पता नहीं, तो मैं इस तरह से करूंगा इसको, इस तरह से पहले अंडर रूट ऑफ x plus 1/x होल स्क्वायर, क्यों यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल कर सकते हो, आपका अपना रिजल्ट वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लूंगा x minus 1/x होल स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर आप अगर आप करोगे इसका, तो ये आएगा आपको a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 आएगा प्लस, मगर अगर आप यहाँ पे करोगे ये आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर सेम है, और यहाँ पे माइनस 2 आएगा, मगर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो यहाँ पे यू नो दैट -2 and +4 is +2, फार्मूला सेम रहेगी, समझ आ रहा है आपको, ताकि x minus 1/x में मुझे फार्मूला बन जाए। सो दैट इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 1/x dx, क्योंकि LHS में देखो हम निकालते हैं 1/x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x minus 1/x किसके इक्वल है, तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 4 या 2 स्क्वायर, ठीक है ना। देयरफॉर इंटीग्रल मुझे मिल गया। अब लिमिट चेंज करते हैं, अब लिमिट चेंज करने हैं, लिमिट चेंज में लिख देता हूं, ठीक। when x is equal to lower limit x is equal to 1/2, अपर लिमिट t क्या आएगा, t आएगा आपको शाबाश x है 1/2 माइनस, देखो यहाँ पे आपको आएगा x आपने क्या लिया है 1/2, तो x is 1/2, 1/x आएगा ना 2/1, तो यहाँ पे आएगा 2, समझ आ रहा है आपको। तो t क्या आएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 - 4 -3/2, इसी तरह से व्हेन अपर लिमिट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू t क्या आएगा, t आएगा आपको x, t है x2 - 1/2, so that is 2 to the 4 - 1 is 3/2, so therefore ये इंटीग्रल आपको रिड्यूस हो गया, I is equal to लोअर लिमिट क्या आ गया -3/2, अपर लिमिट क्या आ गया 3/2 साइन ऑफ शाबाश x - 1/x किसके इक्वल है, t है ना, जो 1/x dx 1/x dx किसके हैं, dt डिवाइड बाय, so this is dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4।
अब यहाँ आपको पता है ये वाला इंटीग्रल -a to +a f of x dx, इसके दो वैल्यूज होते हैं 0, f of x is odd, so it's 0 to a f of x dx when f of x is even, होता है ना। अब मुझे बोलो ये sin थीटा एडवांस इसका ये पूरा फंक्शन जो है ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इज इट इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। नो देखो पहले TC क्या है आपको इवन फंक्शन 4 को छोड़ो, अब sin t पे डिपेंड रहता है, sin t इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, तो टोटल में ऑड फंक्शन भाई इसका